बनाने के लिए दृष्टि की जरूरत है। जोरदार तालियां हो जाए। हमारे बीच में बहुत ही ज्ञानी, समाज से सारे स्तरों से जुड़े हुए व्यक्ति, जिनका परिचय श्री मदन घेगाटे जी उन्होंने कर दिया है। डॉक्टर सुधा कंकारिया जी परम आदरणीय, उनका नाम महाराष्ट्र के हर शहर में, हर जिले में, हर गांव में बेटी बचाओ अभियान की प्रणेता के रूप में सारी जगह गया है। मैं आयोजक की ओर से, सीआरपीएफ और एनवाईकेएस की ओर से इनका तहे दिल से यहाँ पे स्वागत करता हूँ कि यहाँ हमारे सारे पार्टिसिपेंट के संबोधन के लिए यहाँ पधारे हुए हैं। जोरदार तालियों से उनका स्वागत किया जाए। इतना बड़ा विषय जो है बेटी बचाओ अभियान, आप जानते हैं कितनी गंभीर समस्या बेटी के बारे में हो रही है। सारे राज्यों में संख्या कम क्यों हो रही है और उसको बढ़ाने का काम उन्होंने जो काम शुरू किया, तो राज्यों में समाज के सारे स्तर के लोग, न्यायाधीश से लेके पुलिस प्रशासन से लेके सीआरपीएफ से लेके गांव के सरपंच, बचत गढ़ की महिलाएं और सारे समाज के आंगनवाड़ी सेविका, इन सभी का प्रबोधन करके उन्होंने महाराष्ट्र, राजस्थान जैसे राज्यों में वो बेटी बचाओ अभियान लेकर बेटी की संख्या बढ़ गई है। ये बहुत ही सराहनीय काम है, वो यहाँ करते हैं। Dr. Sudha Kankriya, pioneer of Welcome Girl Child Movement and Save the Girl Child Mission. She is from Ahmednagar district in India. In India, female feticide issue has become fierce nowadays. But Dr. Sudha Kankriya is doing a great job to stop such horrible thing. You must not worry whether the desired result follows from your actions or not, so long as our motive is pure. Your means correct. Following these great words by Mahatma Gandhi, Dr. Sudha started this activity and done miracles. Many programs are developed to promote the Welcome Girl Child movement, just as Gram Sabha resolutions, fixed deposit scheme for newborn baby girl, 1 rupee magic scheme, facilitation of the parents of the newborn baby girl, mass pregnancy celebration, common oath program, and many others. Through this common oath campaign, more than 1.5 million people have taken mass oath to save the girl child till date. Many workshops promoting 11 project action plan are being conducted for mayors of villages, students, NGOs, judges, bureaucrats, political leaders, and for many others. Dr. Sudha also arranged many workshops for the University of Pune, which is called Oxford of the East, and many other universities in India. Up to now, 3 million of people have directly participated in this activity through these workshops. She also wrote books for the public education on this subject. The President of India, Shrimati Pratibha Tai Patil, praised the movement
on 21st August 2007. That was the most precious and boost-up moment for this activity. It is said that very few have the power to change the history of the society. Dr. Sudha is one of them, we said. In India, 7 steps are carried out in marriage ceremony. These steps means the promise or commitment for happy and healthy married life. But Dr. Sudha introduces one more step, that's the 8th oath, to welcome girl child in the family. This is the most revolutionary act by her. This concept is highly appreciated and welcomed by the society. Once Dr. Sudha found that at one district, the Nakoshi means unwanted names are given to the girls. Dr. Sudha was deeply touched to hear this, and one more activity is added in the movement. Dr. Sudha started promoting the renaming of these unwanted girls, and this act was highly appreciated not only in India but in Germany, USA, London and China. Dr. Sudha creating the mass public awareness through many public meetings, rallies, posters in social institutions and many other places. If you don't know where you are going, you will probably end up somewhere else. We always speak about, is science a curse or a boon? Many doctors, radiologists and others took advantage of the discriminatory social practice of son preference and daughter aversion. But Dr. Sudha took strong steps with Indian Medical Association and other medical institutions to stop sex determination and selective abortion. Dr. Sudha got many awards for her work, and she was doing all this from last 25 years as her social responsibility. Now, the growing number of girls is the best reward for her activity. It's our turn now to support such a great work. In the end, we say that the Lord will provide you, but you must give Him some help. Thank you. विषय है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज अगर हमने देखा तो भारत देश में, पूरे भारतवर्ष में 1.5 करोड़ से भी ज्यादा बेटियां गर्भ अवस्था में मारी गई है। 1.5 करोड़ से भी ज्यादा बेटियां जन्म लेने के पहले ही मारी गई है। कि जो कहते हैं कि जो माँ का कोख होता है, जिसको हम उदर कहते हैं, कि जिसको तीर्थ क्षेत्र की उपमा दी गई है, जहाँ पे एक नया जीव निर्माण होता है, एक नई सृष्टि की निर्मिति वहाँ होती है। ऐसे तीर्थ क्षेत्र रहने वाले इस कोख को स्मशान भूमि करने का बहुत ही बुरा, बहुत ही नीच कर्म हमारे आजू बाजू में होते हुए हमें पाया जा रहा है। तो मैंने कहा कि 1.5 करोड़ से भी ज्यादा बेटियां, 100 नहीं, कोई हंड्रेड्स नहीं, कोई थाउजेंड्स नहीं, कोई लैक्स नहीं, तो 1.5 करोड़ से भी ज्यादा बेटियां कोख में मारी गई है। जो बेटी माँ के कोख में है, वो अपने माँ को कहती है कि माँ, तेरी पिताजी की, दादा दादी की बातें मैंने कल रात में सुनी माँ। आप सबने मिलकर ऐसा डिसाइड किया है ना कि कल मुझे डॉक्टर अंकल के पास ले जाना है? नहीं माँ, नहीं, आप ऐसा नहीं करना माँ, डॉक्टर अंकल के पास मुझे नहीं ले जाना माँ। मुझे डॉक्टर अंकल की बहुत बहुत तरसा लगता है, वो बड़ा बड़ा इंस्ट्रूमेंट लेंगे माँ, मेरे सर को कुचल देंगे, मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े करेंगे, गली में मुझे फेंक देंगे, कुत्ते आएंगे, मुझे मुंह में चबाएंगे और चबा चबा के खा डालेंगे
चाहिए माँ। माँ, खून से लथपथ हुआ मेरा ये चेहरा, खून से लथपथ हुआ मेरे शरीर, आप क्या देख पाओगी माँ? नहीं माँ, नहीं, आप ये नहीं देख सकती माँ। माँ, ऐसा नहीं करना माँ, मुझे नहीं मारना माँ, मैं कोई भी तकलीफ आपको नहीं दूंगी ना माँ। मुझे न कोई मिठाई चाहिए, न कोई नए कपड़े चाहिए माँ। मुझे दीदी के कल के कपड़े भी चलेंगे, मुझे इतनी सी रोटी मिली तो भी चलेगा माँ। माँ, मुझे बहुत पढ़ना है, पढ़ाई करना है, तेरा बुढ़ापा भी लाठी बनना है, दादा दादी की सेवा करना है, समाज की सेवा करना है माँ। माँ, मैंने ऐसे क्या किया है कि मुझे ये शिक्षा मिल रही है माँ? माँ, तुझे गोदी में मुझे खेलना है, स्कूल में जाना है, पढ़ाई करनी है, देश की सेवा करनी है माँ। माँ, ऐसा करना नहीं माँ, मुझे मारना नहीं। माँ, तुझे ऐसा क्यों नहीं लगता कि झांसी की रानी मेरे रूप से यहाँ दुनिया में आएंगी? माँ, तुझे ऐसा क्यों नहीं लगता कि कल्पना चावला मेरे रूप से इस दुनिया में आएंगी? माँ, आपको क्यों नहीं लगता कि झांसी की रानी जिसका माता भी मेरे रूप से यहाँ पे धरती पर आ सकती है? माँ, मुझे मत मारो माँ, मुझे ये सब कुछ बनना है, मुझे सावित्रीबाई फुले बनना है, मुझे जिजा माता बनना है, मुझे झांसी की रानी बनना है माँ। लेकिन कब तू मुझे जन्म देगी तो ही ना। मराठी में कहते हैं की वेळ नाही गेली अजून हाक देते मी तुला, वेळ नाही गेली अजून हाक देते मी तुला, खुडू नको कळी आई, खुडू नको कळी आई, देश घडवायचा आहे मला, देश घडवायचा आहे मला। माँ, मुझे अपने गले से लगा ले, दिल में छुपा ले कि आज मेरा कोई नहीं। माँ, मुझे अपने गले से लगा ले, दिल में छुपा ले कि आज मेरा कोई नहीं। माँ, मुझे मारते सब लोग यहाँ है, डर सा लगता है कि आज मेरा कोई नहीं। माँ, मैं पढ़ूंगी, आगे बढ़ूंगी, तेरा पापा का सहारा बनूंगी, पर आज मेरा कोई नहीं। माँ, मेरे शादी से तू डरना नहीं, दहेज के बारे में सोचना नहीं, कन्या भ्रूण हत्या करना नहीं कि आज मेरा कोई नहीं। माँ, मुझे आने दे ममता भरी तेरी नजर, मुझको मिलने दे, प्यार की गंगा में आगे मैं बहाऊंगी, दुनिया सवारूंगी कि माँ मुझे आने दे, माँ मुझे आने दे। अक्सर पाया जाता है कि बेटे को जैसे मराठी में कहते कि मुलगा हाच वंशाचा दिवा आणि मुलगी मात्र पराया धन। बेटा को ही वंशज कहा जाता है, कुल दीपक कहा जाता है, और बेटी को पराया धन कहा जाता है। ये हमारे हजारों साल से हमारा माइंडसेट बन चुका है कि बेटा ही कुल दीपक है। अगर आज बेटी का जन्म नहीं होगा तो कल की माँ का निर्माण होगा क्या? कल की माँ का निर्माण नहीं हुआ तो बेटा या बेटी किसी का जन्म होगा क्या? अगर बेटा या बेटी किसी का जन्म नहीं हुआ तो मानव वंश आगे बढ़ जाएगा क्या? मानव वंश आगे जाएगा क्या? नहीं जाएगा। फिर कौन हो गया कुल दीपक? कौन हो गया कुल दीपक? बेटी बोले। ओके, तालियों से स्वागत करें। मराठी में ऐसे कहते की म्हणूनच म्हणते आता तरी विचार करा, म्हणूनच म्हणते आता तरी विचार करा, वंशाचा दिवा खरा कोण तुम्ही ओळखा। म्हणूनच म्हणते आता तरी विचार करा, वंशाचा दिवा खरा कोण तुम्ही ओळखा। पंथीनेच पुन्हा दिवा प्रज्वलित होतो, पंथीनेच पुन्हा दिवा प्रज्वलित होतो। स्त्री असो वा पुरुष जन्मत स्त्रीच्याच पोटी घ्यावा लागतो। आईची महती कशाला हवी सांगायला, आईची महती कशाला हवी सांगायला। चला सज्ज होऊया स्त्री जन्माचे स्वागत करायला, चला सज्ज होऊया स्त्री जन्माचे स्वागत करायला। नेक्स्ट प्लीज। महामहिम राष्ट्रपती प्रतिभाताई पाटील उस
उन्होंने इस बेटी बचाओ के लिए बहुत अच्छा मैसेज दिया था, वो आपके सामने है। यूरोप में यूनिवर्सिटी ऑफ माउंटेन्स ने एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था और उसके इनॉग्रेशन फंक्शन में उन्होंने मुझे चीफ गेस्ट बोल के निमंत्रित किया था। उसके लिए हम कुछ पिक्चर्स देख रहे हैं। नीचे क्रिक टेलीविजन में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में इंटरव्यू हो रहा है, वो हम देख रहे हैं और उनके लैंग्वेज में ये पूरा इंटरव्यू उनके न्यूज़पेपर में आया था, वो हम देख रहे थे। एक्चुअली यूरोप में ये प्रॉब्लम बिल्कुल ही नहीं है। वहाँ पे बेटी बचाओ सेव गर्ल चाइल्ड ये प्रोजेक्ट ये मिशन चलाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पे अगर सेक्स रेशियो का अध्ययन किया तो बेटियों का सेक्स रेशियो बहुत अच्छा है बेटों के परे। ऐसा है कि उन्होंने इसका आयोजन क्यों किया, क्योंकि भारत देश में चीन में और बाकी 2-3 देशों में भी ये बड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन ये प्रॉब्लम पूरी दुनिया से ही हट जाना चाहिए, वो उसका एक था। इसलिए यूनिवर्सिटी ऑफ माउंटेन्स ने इसका आयोजन किया हुआ था और केवल वेबसाइट का अध्ययन करके, मेरे वेबसाइट का अध्ययन करके उन्होंने ये निमंत्रण मुझे भेजा था। आप भी वो हमारी जो वेबसाइट है जो आपको पैम्फलेट दी गई है उसके लास्ट पेज पे वो वेबसाइट का एड्रेस है, उसको आप जरूर विजिट करें। ये सही अगर अध्ययन किया पूरे देश का तो 1991 से लेकर 2001 तक बहुत कम होते गया और 2011 में इट्स ओनली 914। 2011 का ये सेक्स रेशियो है, जम्मू कश्मीर का है और सभी 1000 बेटों के सामने बेटियां हैं। जम्मू कश्मीर का है 859, हिमाचल प्रदेश 906, पंजाब 846, चंडीगढ़ 867, उत्तराखंड 886, हरियाणा 819, दिल्ली 866, राजस्थान 883, उत्तर प्रदेश 899, बिहार 833, सिक्किम 940, अरुणाचल प्रदेश 960, नागालैंड 944, मणिपुर 934, मिजोरम 971, त्रिपुरा 953, मेघालय 970, आसाम 957, पश्चिम बंगाल 950, झारखंड 943, ओडिशा 934, छत्तीसगढ़ 964, मध्य प्रदेश 912, गुजरात 886, दीव दमन 909, दादरा 924, महाराष्ट्र 883, आंध्र प्रदेश 943, कर्नाटक 943, गोवा 920, लक्षद्वीप 908, केरल 959, तमिलनाडु 946, पौंडीचेरी 965, अंडमान निकोबार 966 एंड भारत देश 914। सभी स्टेट के सेक्स रेशियो 2011 का जो मैंने आपके सामने रखा है, ये महाराष्ट्र के हर एक जिले का सेक्स रेशियो आपके सामने है। पुणे जिला में हम है, इसलिए स्पेसिफिकली पुणे जिला का डिटेल आपके सामने यहाँ रखा हुआ है। नेक्स्ट, जो मैंने कहा कि 1.5 करोड़ बेटियां की भ्रूण हत्या हो गई है, ये जो सर्वे है वो 1.5 करोड़ गर्ल्स हैव गॉन मिसिंग इन लास्ट 30 years, सर्वे बाय सेंटर फॉर ग्लोबल हेल्थ रिसर्च एंड सपोर्टेड बाय संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार समिति। नेक्स्ट, क्यों होती है भ्रूण हत्या, क्यों होती है बेटियों की भ्रूण हत्या? ये सारे रीजन हमें मालूम है और इसके बारे में हम सभी चिंतन कर रहे हैं। अभी जो सामाजिक दुष्परिणाम है वो हमारे सामने है कि कितने सारे सामाजिक दुष्परिणाम हो रहे हैं कि शादी के लिए लड़कियां मिलना मुश्किल हो गया है। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान इन जगहों पे लड़कियों को विकल्प दिया जाता है, माने उनकी पैसे की बोझी लगती है। इतना बुरा समय आ गया है, सामाजिक एवं नैतिक सवाल खड़े हो गए हैं। गिरी की नीतिमत्ता है, लैंगिक अत्याचार है एवं एड्स का फैलाव है। चीन में एक
एक बच्चा इस योजना के अंतर्गत स्त्री भ्रूण हत्या एवं 4 कोटि से भी ज्यादा, चीन में आज 4 कोटि से भी ज्यादा हमारे जो बेटे हैं वो शादी से परे हैं, उनको शादी के लिए दुल्हन नहीं मिलती है। ये और भी भयानक बात हमारे सामने है कि राजस्थान के डांग इस जिले में शादी के लिए दुल्हन नहीं मिलती है, तो एक फैमिली के जितने भी लड़के हैं उनके साथ में एक ही बहू लाई जाती है। ये बहुत ही बुरी बात, जैसे हम कहते कि महाभारत हो रहा है। नीचे देखो, राजस्थान की बाड़मेर जिले में 200 फैमिलीज में केवल 2 ही बेटियां यहाँ पे हो गई है। नेक्स्ट, पंजाब में कई ऐसी बाउडीज मिली कि जहाँ फीटस यानी जो स्त्री भ्रूण हत्या होती है उसका जो अवशेष होता है वो बाउडी में डाला गया, और ऐसी कई बाउडियाँ उससे भरी हुई पाई गई है। तो हरियाणा में तो ऐसा नारा लगा कि लड़की दो वोट लो। ये नारा गए 10 साल से वहाँ पे लगा हुआ था कि लास्ट इलेक्शन हुआ था तभी भी लड़कों ने कहा कि पहले लड़की दो फिर हम वोटिंग करेंगे। अभी भी जो इलेक्शन का ऐलान हुआ, इलेक्शन यहाँ पे वहाँ पे संपन्न हो गया, तभी भी यही नारा था कि पहले बहू दो फिर हम वोटिंग करेंगे। इतना बड़ा हरियाणा का सेक्स रेशो बहुत ही अनविजुअल हो गया है। अभी मैं लास्ट मंथ हरियाणा गई थी, वहाँ की सामाजिक परिस्थिति बहुत ही चिंतादायक पाई गई है कि ऐसे छोटी ये 4 साल की छोटी बच्ची है, लेकिन उसके ऊपर भी बहुत ही अनाचार अत्याचार हो गया है। अभी तो हम कई बातें पढ़ रहे हैं कि हम न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, टीवी के न्यूज़ में पढ़ते हैं कि कोई एज का कोई ये नहीं है कि 6 महीने की बेटी हो, 4 साल की हो, 10 साल की हो या 60 इयर्स की हो, 70 इयर्स की दादी हो, लेकिन ऐसे अनाचार दुराचार की संख्या बढ़ती गई है। ये बहुत ही खेददायक बात है, बहुत ही चिंतादायक बात है और बहुत ही गहराई में सोचने की बहुत जरूरत है आज हमें। इसके कारण हरियाणा में और एक बहुत बुरी बात को बढ़ावा दिया गया है, वो है कि छोटी उम्र में शादी उनकी रचाई गई है कि कई बार तो अपने भाई के साथ भी शादी का ऐलान होने लगा है। ये कितनी रेखा हम नीचे गिरते जा रहे हैं, देखो ने। तो हमें क्या करना चाहिए कि क्योंकि ये खाली बातें सुनने की नहीं है, ये बातें काफी केवल लिखने की नहीं है, तो ये बातें एक्शन में लानी चाहिए। माने कुछ एक्शन हम करेंगे तो ही परिवर्तन होगा, नहीं तो परिवर्तन नहीं हो सकता है। और जो मेरे आज सामने बैठे हुए हैं सभी युवा है, आप सभी युवा है और अपने भारत देश की ताकत ही युवाओं की ताकत है, क्योंकि आपके पास उमंग अच्छा है, उम्मीद अच्छी है, उत्साह अच्छा है, कुछ न कुछ करने की जिद आपके पास है। ये जो ऊर्जा है, ये जो शक्ति है, ये अगर विधायक कामों में लग जाए तो बहुत बड़ा अच्छा परिवर्तन इस देश में और इस दुनिया में आने वाला है। इसलिए हम क्या एक्शन कर सकते हैं तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट। तो उसके लिए 11 सूत्री कृति कार्यक्रम, 11 सूत्री एक्शन प्लान, यानी बेसिक बातें इसमें ली हुई है। इससे ज्यादा कई एक्शन हम कर सकते हैं, लेकिन मूलभूत बेसिक जो बातें हैं उसके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट। सबसे पहला जो पॉइंट है, सबसे पहला सूत्र जो है वो है संकल्प करना। भाई साहब ने अभी संस्कार की बातें की हुई थी, तो संस्कार क्या है कि संकल्प का संस्कार होना चाहिए। माने एक अच्छा थॉट, एक अच्छा विचार ये हमारे साथ में होना चाहिए। कि क्या विचार होना चाहिए कि हमने हर एक बेटी के जन्म का स्वागत करना है। ये वैयक्तिक भी रिजोल्यूशन होना चाहिए अपने लाइफ का, ये कौटुंबिक भी अपना पारिवारिक भी इसका रिजोल्यूशन होना चाहिए। और साथ साथ जिस संगठन में हम कार्य कर रहे हैं
मंडल में 20 फैमिलीज होंगी, 30 फैमिलीज होंगी, जितने भी होंगी, तो हमारे कोई भी फैमिली मेंबर के फैमिली में एक भी कन्या भ्रूण हत्या नहीं होगी और हर एक बेटी का हम दिल से स्वागत करेंगे। ऐसा एक छोटा सा ठराव पारित करना है, रिजोल्यूशन पास करके लेना है। हर एक जो युवा मंडल के रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे आज उपस्थित है, उनको मैं इसके लिए रिक्वेस्ट करती हूँ, करके लेंगे ना, करके लेंगे ना सभी अपने अपने युवा संगठन में ये ठराव पारित करना है कि एक भी कन्या भ्रूण हत्या हमारे परिवार में नहीं होगी। करके लेंगे ना? करके लेंगे ना? चलो आवाज नहीं आ रही, हाथ ऊपर कीजिए किनको करके लेना है। 100% हाथ ऊपर आई हुई है, 100% हाथ ऊपर आई है। चलो तालियां से उसके स्वागत करें। तो ग्राम सभा भी हम कंडक्ट कर सकते हैं। हमारे नजदीक जो भी पंचायत है, ग्राम पंचायत है, उसमें जैसे हमने अपने युवा मंडल के लिए ये ठराव पारित करके लिया है, वैसे ही हम ये मालूमात पंचायत के ग्राम सभा में जाके इसको दोहराना है और उनकी भी हेल्प, जैसे सरपंच, ग्राम सेवक लोगों की भी हेल्प लेके इस ठराव को हम ग्राम सभा में पारित करके ले सकते हैं। नेक्स्ट, ये देख रहे हैं आप, एक ग्राम सभा में ये ठराव पारित हो रहा है। नेक्स्ट, ये राखी पूनम के दिन हम इस ठराव को आगे बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट, शुगर फैक्ट्री ने, कई शुगर फैक्ट्रीज ने ऐसा रिजोल्यूशन पास करके लिया है। नेक्स्ट, कई पथ संस्थाओं ने भी बेटी के लिए फिक्स डिपॉजिट का चलन किया है, फिक्स डिपॉजिट बेटी के नाम पे करने का डिसीजन लिया हुआ है। नेक्स्ट, म्युनिसिपल काउंसिलर जो होते हैं उनके लिए जो वर्कशॉप कंडक्ट किया है, उन्होंने भी इसके बारे में अच्छा डिसीजन लिया है। जैसे जो हर ग्राम पंचायत में हर बेटी के नाम पे 2000 का फिक्स डिपॉजिट करने का अहमदनगर जिले में के सभी ग्राम पंचायत ने ऐसा ठराव पारित किया हुआ है। नेक्स्ट, उसके बाद में दूसरा सूत्र है कि अपने अपने इलाके का सेक्स रेशो हमें मालूम होना चाहिए, क्योंकि जब तक हमें सेक्स रेशो का मालूमात नहीं मिलती है, तब तक हम जो कार्य कर रहे हैं वो कहाँ तक करना चाहिए और इसमें इम्प्रूवमेंट हो रही या नहीं हो रही है, इसका अध्ययन नहीं हो सकता है। तो डीएचओ ऑफिस में इस सेक्स रेशो की मालूमात होती है, या हर एक ग्राम पंचायत में भी इस सेक्स रेशो का डिस्प्ले होना जरूरी है, वहां से हम ये मालूमात ले सकते हैं। नेक्स्ट, फिर साथ में लोगों का सहभाग होना आवश्यक है। जैसे हम कहते हैं कि लोकतंत्र में हर एक इंसान का कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, तो उसके लिए 1 रुपी मैजिक स्कीम हमने लॉन्च की है। तो क्या है ये 1 रुपी मैजिक स्कीम? वो ऐसी है कि हम समझो एक पंचायत का, फॉर एग्जाम्पल ऐसे एक उदाहरण लेते हैं कि एक ग्राम पंचायत है, तो वहाँ पे 4000 पॉपुलेशन है। तो 4000 पॉपुलेशन है, छोटा सा गांव है, अगर वहाँ पे कोई बेटी का जन्म होता है तो हर एक व्यक्ति ने 1 रुपी का कंट्रीब्यूशन देना है, 1 रुपी का कंट्रीब्यूशन देना है। माने इकट्ठा 4000 रुपये वहाँ पे कलेक्ट हो जाएंगे। तो ये 4000 रुपये कैसे यूटिलाइज करना है? तो बेटी के लिए कुछ क्लॉथ्स लेने हैं, कपड़े लेने हैं, माँ को भी साड़ी वगैरह देनी है, और माँ के सासू जी का भी फूल और श्रीफल देके सम्मान करना है। इसको हम कन्या जन्म आनंद सोहला कह सकते हैं, क्योंकि हम देखते ऐसे हमारे समाज में पाया गया है कि जब भी बेटों का जन्म होता है सभी खुश हो जाते हैं, मिठाई बांटी जाती है, पेड़े बांटे जाते हैं, लेकिन बेटी का अगर जन्म हुआ तो
माँ बाप से लेके सभी उदास और निराश हो जाते हैं। ये जो उदासीनता है, ये जो निराशा है, इसको हमें माइनस करना है, डिलीट करना है और उस जगह पे हम खुशी और आनंद हमें निर्माण करना है। तो उसके लिए कन्या जन्म आनंद उत्सव हमें मनाना है और वो भी अकेले नहीं तो सबको साथ में लेके करना है। और उसके लिए 1 रुपी मैजिक स्कीम है। ये 1 रुपी मैजिक स्कीम आप आपके युवा मंडल में भी कर सकते हैं, ग्राम पंचायत में भी कर सकते हैं, आपके कॉलोनी में भी कर सकते हैं, या कोई भी संस्था, कोई भी संगठन में हम ये 1 रुपी मैजिक स्कीम कर सकते हैं। महाराष्ट्र में और महाराष्ट्र के बाद दिल्ली, गुजरात, पंजाब में भी ये 1 रुपी मैजिक स्कीम बहुत अच्छा कार्य कर रही है। आपको भी मैं विनती करती हूँ, जैसे आप अपने गांव लौटेंगे वहाँ पे भी आप 1 रुपी मैजिक स्कीम की शुरुआत कर दीजिए। यह है 1 रुपी मैजिक स्कीम। उसके बाद एक लखपति स्कीम है। जो लखपति स्कीम अभी महाराष्ट्र में सुकन्या लखपति स्कीम महाराष्ट्र गवर्नमेंट की चल रही है। तो उसके लिए बिलो पॉवर्टी लाइन के परिवार में पहली 2 जो बेटियां होती है, उसके बाद में फैमिली प्लानिंग का ऑपरेशन करते हैं, तो वो 18 साल की होने के बाद वो लखपति बन जाती है। वो ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट की ये स्कीम है। तो उसका भी हम जो भी बीपीएल परिवार है उनको ये मालूमात देके उसका लाभ लेने के लिए हम प्रयत्न कर सकते हैं। उसके साथ साथ हम भी एक लखपति स्कीम बना सकते हैं। तो वो कैसी है कि इसमें हम बेसिक इन्वेस्टमेंट 15,000 रुपीज़ करना है और रेट ऑफ इंटरेस्ट जब 9.75% होगा तभी 20 इयर्स के बाद 1 लाख और कुछ रुपीज़ हो जाएंगे। तो ये स्कीम कैसी इस्तेमाल करना है? तो ये स्कीम ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं कि जो ग्रुप अपना है वो ग्रुप के माध्यम से 15,000 रुपीज़ जमा करना है। वो 20 इयर्स के लिए फिक्स डिपॉजिट रखना है और उसके बाद में 20 इयर्स के बाद में 1 लाख से भी ज़्यादा रुपीज़ यहाँ पे हमें मिल सकता है। ये कोई भी ग्रुप में, कोई भी कॉलेज में हम इसको फॉलो कर सकते हैं। तो आप भी जिस कॉलेज में है वहाँ फॉलो करना बहुत इजी है। तो ये कॉलेज है, पूना का ही एक कॉलेज है। ऐसे कई कॉलेज हैं कि उन्होंने ये स्कीम का इस्तेमाल किया है उनके कॉलेज में। ये बीजेएक्स कॉलेज पूना का है। उनके जो टोटल स्टूडेंट्स हैं तो हर स्टूडेंट 7 रुपये और 50 पैसा कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं और उसके मिला के 50,000 रुपीज़ जमा हो जाते हैं और ये लखपति स्कीम का लाभ वो छोटी सी नन्ही मुन्नी बच्ची को देते हैं। आप भी ऐसा कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये सुकन्या समृद्धि योजना है जो अभी सम्माननीय पंतप्रधान साहब नरेंद्र मोदी साहब ने इसको शुरुआत किया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत। और ये पोस्ट ऑफिस से निगड़ित हुई सुकन्या समृद्धि योजना है। तो इसके डिटेल्स यहाँ पे दिए हुए हैं। आपको भी पैम्पलेट में भी इस डिटेल्स वहाँ पे दिए गए हैं। इसका भी हम अच्छी तरह लोगों को सारी बातें बताते हुए इस स्कीम को भी अच्छी तरह प्रमोट कर सकते हैं। नेक्स्ट, फिर जैसे मैंने कहा कि महाराष्ट्र शासन की सुकन्या लखपति योजना है जिसके अंदर 21,200 रुपीज़ LIC के स्कीम में हम माने गवर्नमेंट उसको फिक्स डिपॉजिट करेगी और उसके बाद में 18 साल पूरे होने के बाद में 1 लाख आपको मिल सकता है, वो बेटी के लिए मिल सकता है। तो ये सुकन्या लखपति योजना जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट की है उसका भी हम लाभ ले सकते हैं। नेक्स्ट, उसके बाद में जिनके घर में केवल बेटियां हैं उस परिवार का सम्मान करना चाहिए। हम भी आज यहाँ पे उपस्थित
परिवार है कि जिस परिवार में केवल बेटियां हैं और बेटा नहीं है, उनका सम्मान करने वाले हैं। इस सभा में हाथ ऊपर कीजिए कि जिनके परिवार में बस बेटियां हैं, बेटे नहीं है, कृपया हाथ ऊपर कीजिए। मैडम है, उनके लिए भी तालियां बजाना। और इधर जो महिला बैठी हुई है कि जिनके परिवार में केवल महिला है और भाई नहीं है, हाथ जोर से ऊपर कीजिए। गौरव कर रहे हैं हम, उनका भी हम स्वागत करने वाले हैं। इसके बाद में बेटी की है कुल दीपिका, वो कैसे, उसके बारे में हमने देखा कि बेटा अगर कुल दीपक है तो बेटी कुल की दीपिका है। इस विधान को हमें आगे ले जाना है। लेकिन हमने अभी देखा कि मैंने अभी कहा कि अगर बेटी का जन्म नहीं हुआ तो माँ का निर्माण नहीं होगा, माँ का निर्माण नहीं होगा तो बेटा या बेटी किसी का जन्म नहीं होता है, बेटा या बेटी किसी का जन्म नहीं हुआ तो ये वंश आगे नहीं जा सकता है। माने कुल का दीपक या कुल की दीपिका कौन हो गई, तो उसके आंसर आया था, हमारे भाई ने बोला था कि बेटी होगी कुल दीपिका, तो ये करेक्ट आंसर है। लेकिन उसके साथ साथ मैंने ये भी कहा था कि हजारों साल से हमारा माइंडसेट ऐसा बना हुआ है कि बेटा ही कुल दीपक है, बेटा ही कुल दीपक है, ऐसा माइंडसेट पूरे समाज का बन गया है। तो ये माइंडसेट को बदलने के लिए स्टार्टिंग में हमें पॉजिटिव अप्रोच लेना चाहिए। और पॉजिटिव अप्रोच हम किस प्रकार का ले सकते हैं, तो हम ऐसा कहेंगे कि बेटा अगर कुल दीपक है तो बेटी कुल की दीपिका है। माने हमको बार बार सबको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है या बार बार सबसे झगड़ा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस मिशन में हमें जितना बेटियों का भी सहभाग आवश्यक है और बेटों का भी सहभाग आवश्यक है। हर किसी को जाके हम ये बात समझा नहीं सकते हैं, तो हम सार्वजनिक रूप में ऐसा कहेंगे कि बेटा अगर कुल दीपक है तो बेटी कुल की दीपिका है। दूसरी बात ऐसी है कि अगर कोई परिवार में बेटे का जन्म नहीं हुआ तो दोष ये माँ को दिया जाता है। लेकिन ये कैसा गलत है, देखो आपके सबके हाथ में वो पैम्पलेट है, आप पैम्पलेट को खोलिए, पैम्पलेट को खोला तो उसके अंदर ये चार्ट लगा हुआ है जो सामने स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है कि माँ के पास X और X ऐसे 2 क्रोमोसोम होते हैं। माँ के पास X और X ऐसे 2 क्रोमोसोम होते हैं और पिताजी के पास X और Y ऐसे 2 क्रोमोसोम होते हैं। जब भी माँ के पास से X आता है, पिताजी के पास से X आता है, 2 X बनते हैं, तो किसका जन्म होना चाहिए, बेटी का जन्म होना चाहिए, करेक्ट। जब माँ के पास से X आता है, पिताजी के पास से Y आता है, XY बनते हैं, तो किसका जन्म होना चाहिए, बेटे का जन्म होना चाहिए, करेक्ट। माने बेटे का अगर जन्म होना है तो कौन सा क्रोमोसोम आवश्यक है, X और Y, करेक्ट। तो X तो दोनों के पास है, लेकिन Y किसके पास है, Y किसके पास है, पिताजी के पास Y है। माने परिवार में अगर बेटे का जन्म नहीं होता है तो दोष किसके पास जाना चाहिए, पिता के पास, करेक्ट। आप में से कोई है, पिता के पास, करेक्ट। माने Y क्रोमोसोम पिताजी के पास होता है और वो क्रोमोसोम अगर आगे फॉरवर्ड नहीं हुआ तो बेटी का जन्म नहीं हो सकता है। माने बेटा या बेटी किसी का जन्म होना ये पति के गुणसूत्रों के ऊपर निर्धारित होता है। ये जो वैज्ञानिक सच्चाई है ये सबको बताना चाहिए। हम यहाँ पे किसी का दोष है, इसका दोष है, ये बोलने के लिए नहीं हम इकट्ठे हुए हैं। हम इसलिए इकट्ठे हुए कि साइंस क्या कहता है, साइंस ये कहता है कि बेटा या बेटी इनमें से किसी का भी जन्म होने के लिए जो निर्धारित किया जाता है वो पति के गुणसूत्रों के ऊपर निर्धारित होता है। इसीलिए अगर परिवार में अगर बेटे का जन्म नहीं हुआ तो दोष माँ को बिल्कुल नहीं देना है। आज हम
जानकारी उसके भी लिए बहुत आवश्यक है। तो अभी मैंने कहा कि माइंडसेट बदलना बहुत जरूरी है। ये 2 माइंडसेट बदलने चाहिए। पहला उसका सेक्शन ऐसा है कि बेटा ही कुलदीपक है और बेटी पराया धन है। इसको चेंज करके हम ऐसा कहेंगे कि बेटा अगर कुलदीपक है तो बेटी कुल की दीपिका है और दोनों परिवार को उजागर करने का पवित्र कार्य वो करती है। दूसरी बात है, अगर परिवार में बेटी का जन्म नहीं हुआ तो उसका दोष माँ के ऊपर नहीं है। बेटा या बेटी किसी का जन्म होने के लिए पति का गुणसूत्र पर वो निर्धारित होता है। ये वैज्ञानिक सच्चाई सबने समझ के लेना चाहिए। माँ को कोई तकलीफ नहीं हो देना है। माँ को कोई इस बात के लिए बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं पकड़ना चाहिए। फिर कई जगह हम देखते हैं कि बेटी का नाम ही कुछ अलग सा रखते हैं कि सातारा जिला में उसका नाम नकोशी रखा, बीड जिले में उसको कड़ुबई बोल दिया, बॉम्बे के साइड में उसको निराशा कह दिया, राजस्थान में उसको अंतिमा बोल देते हैं। माने बेटी को इतना डिग्रेड कर देते हैं कि उसका नाम ही कुछ ऐसा रख देते हैं। उसके कारण से उसको इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स का उसका निर्माण होता है और साथ साथ में उसका जीवन वो ऐसा सोचती है कि कोई सभी मुझे अंतिमा कहे, कोई मुझे कड़ुबई कहे, कोई मुझे नकोशी कहे और इसके कारण मेरा जीवन ऐसा कैसा बन गया है। तो वो ऐसा सोचती है कि जब वो छोटी सी बड़ी हो जाएगी, उसकी शादी हो जाएगी, वो भी कभी उसकी भी कभी गोद भराई होगी, तो वो सोचेगी कि मेरे पेट में अगर बेटी है तो जो जीवन मैंने जीता है, जो जीवन में मैंने इतनी सारी बुरी बातों का सामना करना पड़ा है, तो ऐसे ही पूरा जीवन में मेरी बेटी को क्यों दूं? ऐसा सवाल उसके दिल में खड़ा हो सकता है और उससे वो कन्या भ्रूण हत्या का विषय सर्कल दुष्ट चक्र आगे बढ़ सकता है। ये नहीं होना चाहिए। इसलिए अनवांटेड गर्ल्स का रीनेमिंग सेरेमनी करना हमने शुरू किया। सातारा जिला में 273 बेटियों का नामकरण किया जो नकोशी थी। राजस्थान में अंतिमा कहा जाता है। उस वैसे के कई गाँवों की बेटियों का नामकरण वहाँ पे हमने संपन्न किया। तो वैसे ही आपके इलाके में ऐसा उसका इंटीरियर नाम उनको दिया जाता है, तो उसके लिए हमने वर्क करना चाहिए। आज आप पूरे देश में से आप रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे उपस्थित हो, तो आप भी आपके गाँव का, अपने इलाके का अध्ययन कीजिए और ऐसा कुछ आपने सुना देखा तो उसमें परिवर्तन लाने के लिए आप कोशिश कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये आप देख रहे हैं कि लुकिंग फॉर नकोशी का जो ये नकोशी का जो अनवांटेड गर्ल्स का जो नामकरण विधि हुआ है, उसके कुछ वीडियोस यहाँ पे आप न्यूज़ देख रहे हैं। नेक्स्ट, फिर पुणे जिला में भी एक ग्राम में सरपंच का ही नाम नकोशी था, तो उसका भी नामकरण करके उनका नाम जयश्री रखा गया। द अनवांटेड इंडियन गर्ल्स गेट न्यू स्टार्ट इन नेमिंग सेरेमनी। ये न्यूज़ आप देख रहे हैं सातारा जिला की है और इसका वीडियो पूरे कैलिफोर्निया से लेकर पूरे देश के टेलीविजन पे दिखाया गया। ये कुछ बहुत अच्छी बात नहीं है, लेकिन हमने कुछ पॉजिटिव करना चाहिए और पॉजिटिव न्यूज़ सारी दुनिया में जाना चाहिए। इसमें सभी जैसे आप जैसे जो युवक है उनका सबका सहयोग होना बहुत जरूरी है। तो सारे कॉलेज के एनएसएस और एनसीसी स्टूडेंट को हमने ये इस पूरे अभियान में शामिल होना चाहिए, मिशन में शामिल होना चाहिए। इसलिए सारे यूनिवर्सिटीज के जो कुलगुरु है उनको हमने अपील की थी। नेक्स्ट, ये आप देख रहे हैं कि मीटिंग द रजिस्टर ऑफ द यूनिवर्सिटी। ये नेवी विभाग के काफ़ी पिक्चर आप देख रहे हैं। साथ साथ में एनएसएस और एनसीसी के स्टूडेंट्स पूरे भारत देश में जितने भी है उनको भी इस मिशन में हमने शामिल करके लिया है। नेक्स्ट, ये लास्ट ईयर जो हुआ था नेहरू युवा केंद्र पुणे का राष्ट्रीय एकता शिविर, उसका पिक्चर हम देख रहे हैं। आप जैसे आए थे सारे
देश से रिप्रेजेंटेटिव आए थे, वैसे भी वहाँ पे भी आए हुए थे। नेक्स्ट ये पूना यूनिवर्सिटी का कन्या रत्न अभियान हम देख रहे हैं। ये अमरावती यूनिवर्सिटी का पिक्चर आपके सामने है। नेक्स्ट ये सांगली यूनिवर्सिटी का है। नेक्स्ट ये नांदेड़ यूनिवर्सिटी का है। नेक्स्ट ये शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर का चित्र आप देख रहे हैं। नेक्स्ट ये यूथ कैंपेन फॉर एनएसएस एंड एनसीसी स्टूडेंट्स, ये आप देख रहे हैं। नेक्स्ट ये रैली देख रहे हैं आपकी, हर तरफ रैली का आयोजन करना चाहिए, उससे अवेयरनेस क्रिएट होता है। नेक्स्ट ये हो गया, हमने देखा ये 7वां सूत्र देखा, युवा पीढ़ियों का सहभाग। अभी 8वां सूत्र हम देखते हैं कि 8वां फेरा बेटी बचाओ का, कि आप सारे युवा मेरे सामने आज बैठे हुए हैं और शायद कुछ दिनों में, कुछ महीनों में, कुछ साल में आपका भी विवाह होने वाला है, शादी होने वाली है। तो उस वक्त हमें 2 बातों का ख्याल रखना जरूरी है कि एक तो दहेज देना नहीं है और दहेज देना भी नहीं है। दूसरी बात है कि छोटी उम्र में शादी नहीं होना चाहिए, शादी की उम्र में ही शादी होना चाहिए। और तीसरी बात कि हम शादी के वक्त 7 फेरों के साथ साथ एक 8वां फेरा ले सकते हैं बेटी बचाओ का। कि यूजुअली हम देखते हैं कि शादियों में 7 फेरे लेते हैं। क्या होते हैं वो 7 फेरे? तो हम एक दूसरे को वचन देते हैं कि हम परिवार में सुख में दुख में साथ में रहेंगे, परिवार की एकता देखेंगे, समाज की एकता देखेंगे, देश का भला सोचेंगे। ऐसे 7 फेरे में एक दूसरे को हम वचन देते हैं। साथ साथ में हमें और एक वचन देना है कि हमारे परिवार में अगर बेटी का जन्म होता है तो बड़े दिल से, खुशी से, आनंद से हम उसका स्वागत करेंगे। इसलिए हमने मंत्र भी बनाया है कि एक समान बेटी बेटा, एक समान बेटी बेटा, बेटी बचाओ का 8वां फेरा। एक समान बेटी बेटा, बेटी बचाओ का 8वां फेरा। तो ये 8वां फेरा आप खुद के शादी में ले सकते हैं, आपके परिवार में कोई भी शादी होगी उसके लिए आप सजेस्ट कर सकते हैं, या आपके गांव में, इलाके में जो भी शादियां बनती है उनको भी आप सजेशन दे सकते हैं। तो ये है 8वां फेरा बेटी बचाओ का। मुझे कहते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि राजस्थान के हेल्थ मिनिस्ट्री ने इस 8वां फेरा को उनके अंडर लेते हुए एक सूचना जारी की है कि वहाँ पे जितने भी परिवार में शादी होगी सबने ये 8वां फेरा लेना बहुत ही उचित है, अच्छा है। ऐसे हेल्थ मिनिस्ट्री ऑफ राजस्थान ने डिक्लेयर किया हुआ है। तो आपको भी मैं सबको विनती करती हूँ कि आप भी इस अभियान में शामिल हो जाइए। उसके बाद है एएनसी ट्रैकिंग, सामुदायिक गोद भराई का प्रोग्राम। नेक्स्ट, महाराष्ट्र में एक जननी शिशु सुरक्षा योजना है जिसके लिए जो गर्भवती माताएं हैं और उसके बाद में उनकी डिलीवरी और उनका बच्चों का ख्याल और उनकी जो देखभाल है उसके लिए बहुत अच्छी योजना महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने दी हुई है और वो है जननी शिशु सुरक्षा, और ये पूरे देश में भी चलती है। उसका टोल फ्री नंबर है 102। नेक्स्ट, ये सामुदायिक गोद भराई के प्रोग्राम से मेरी बहू अभी प्रेग्नेंट थी तो हमने उसमें सामुदायिक गोद भराई के प्रोग्राम में हमने उनको शामिल करके दिया था कि आजू बाजू के जो छोटे छोटे गांव हैं, झोपड़पट्टी है, वहाँ जो गरोदर माता थी उनको हमने इनवाइट किया और करीब करीब 27 माताओं का साथ में हमने गोद भराई का प्रोग्राम किया और उनको गर्भ संस्कार में इन्वॉल्व किया, हमने उनको कुपोषण मुक्त भारत में इन्वॉल्व किया, हमने उनको बेटी बचाओ के संस्कार के लिए इन्वॉल्व किया और उसमें से 23% माताओं को बेटी हुई तो कोई नाराज नहीं हुआ, सबने खुशी खुशी मुझे पेड़े ला के दिए। ऐसा परिवर्तन हो गया और सबसे खुशी की बात, मेरे बहुरानी को भी बेटी हुई।
और मैं भी दादी बनती हूँ। 10th अपना सूत्र है, सोनोग्राफी मशीन शाप है या वरदान है। एक्चुअली सोनोग्राफी मशीन की शुरुआत कब हुई? सोनोग्राफी मशीन की शुरुआत 25 इयर्स के पहले हुई। और ये जो हमारा मिशन है सेव गर्ल चाइल्ड बेटी बचाओ, ये 30 इयर्स पहले का है। माने सोनोग्राफी मशीन का उदय होने से पहले ही अपना सेव गर्ल चाइल्ड का मिशन शुरू हो गया था। तो ये सोनोग्राफी मशीन क्यों बनी? क्योंकि अगर माँ के पेट में अगर कोई बच्चा है तो वो बच्चा, ये छोटा नन्हा सा गर्भ, वो उसको उसमें कोई कंजेनाइटल एनामेलीज अगर होती है तो वो जल्दी डिटेक्ट होना चाहिए, या कोई बीमारी होती है तो वो एनामोलिक होती है तो जल्दी डिटेक्ट होना चाहिए, और उसके ऊपर उपचार होना चाहिए, ट्रीटमेंट होना चाहिए, और माँ और वो छोटा सा गर्भ, वो दोनों ही निरोगी सुरक्षित रहना चाहिए, हेल्दी रहना चाहिए। इसीलिए सोनोग्राफी मशीन का उदय हो गया। लेकिन आगे जैसे बढ़ते गए वैसा वो गर्भ में जो अंश है, वो गर्भ है, वो बेटा ही या बेटी है, वो जानकारी मिलने लगी। और बेटी नहीं चाहिए ये तो भावना पहले से बनी हुई थी, और ये विज्ञान ने उसको हाथ दे दिया, उनका सेकेंड हो गया। और ज़्यादा से ज़्यादा सोनोग्राफी मशीन का इस्तेमाल ये सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए होने लगा, और सिलेक्टिव एबॉर्शन की केसेस बढ़ने लगे। तो इसमें कंट्रोल लाने के लिए पीसीपीएनडीटी नाम का एक एक्ट बना है। नेक्स्ट, तो ये पीसीपीएनडीटी एक्ट जो है, तो उसके लिए काफ़ी बड़ी सज़ा सरकार ने सुनाई दी है। उसमें डॉक्टर्स लोगों का जो सोनोग्राफी सेंटर्स होता है उसको भी सील कैसा किया जाता है, क्यों किया जाता है, उसके क्या नियम से, उसके क्या रेगुलेशन से वो बन गए हैं। साथ साथ में अगर कोई माता जो गर्भवती माता है उसको कोई फोर्स करता है कि तू जा सोनोग्राफी कर, तू देख बेटा है या बेटी है, या बेटी हो तो चलो तू एबॉर्शन कर ले, ऐसे जो भी जबरदस्ती करता है उनके लिए भी शिक्षा है। और जो डॉक्टर ये सेक्स डिटर्मिनेशन करके सिलेक्टिव एबॉर्शन करता है उनके लिए भी सजा है। और वो दोनों के लिए महाराष्ट्र में 1800233445 ये हेल्पलाइन दी हुई है। ये हेल्पलाइन का भी हमें इस्तेमाल करना है। हम सभी इस हेल्पलाइन की हेल्प ले सकते हैं। नेक्स्ट, फिर महाराष्ट्र में और बाकी भी देश में ये अल्ट्रासोनोग्राफी सोनोग्राफी का जो जैसे जैसे बदलाव होते गया, ये पूरा चित्र आपके सामने है। नेक्स्ट, ये अभी पीसीपीएनडीटी में के बारे में अवेयरनेस काफ़ी अच्छा होने लगा है, काफ़ी लोगों को सजा हो रही है, हम ये न्यूज़पेपर के माध्यम से देख रहे हैं। नेक्स्ट, तो उसके लिए ये अवेयरनेस के लिए काफ़ी कुछ बातें होना जरूरी है। जैसे हमने देखा कि दिस इज वर्कशॉप और ऑनरेबल जजेस हम देख रहे हैं। नेक्स्ट, ये फिर काफ़ी रोटरी है, लायंस है, एनजीओस है, उनका हमने वर्कशॉप सावित्रीबाई फुले वाड़ा के यहाँ से शुरुआत की थी, वो चित्र आप देख रहे हैं। नेक्स्ट, ये वारकरी लोगों के लिए बन रहा है वर्कशॉप। नेक्स्ट, ये सोनोलॉजिस्ट एंड गायनेकोलॉजिस्ट रेडियोलॉजिस्ट के लिए जो वर्कशॉप है वो देख रहे हैं। दिस इज वर्कशॉप फॉर द मीडिया पीपल। नेक्स्ट, दिस इज ऑल्सो द मीडिया पीपल इज इन्वॉल्व इन दिस प्रोजेक्ट। नेक्स्ट, ये सिग्नेचर कैंपेन भी हम कर सकते हैं। आप जहाँ भी जो भी इलाके से आए हैं, जो भी मंडल से आए हैं, आप वहाँ पे सिग्नेचर कैंपेन कर सकते हैं। ये होली का भी जो त्यौहार है वो अलग तरीके से हम मना सकते हैं कि कन्या भ्रूण हत्या करना, ये सोच, ये विचार, ये थॉट भी गलत बात है, उसका हमने दमन करना चाहिए। इसके लिए होली का हम ये होली के राक्षस का, ये जो विकृति के राक्षस का दमन कर रहे हैं। नेक्स्ट, ये गणपति फेस्टिवल जो है वो भी एक माध्यम है अवेयरनेस क्रिएट करने का, वो हम देख रहे हैं। नेक्स्ट, अहिंसा, ये अहिंसा रैली है। जैसे हमारे यहाँ एक
अहिंसा दिन भी हम मनाते हैं, तभी अहिंसा रैली का भी आयोजन कर सकते हैं। साथ साथ में दुर्गा महोत्सव में भी हम वो जोत को, मशाल को लेके बेटी बचाओ का संदेश दे सकते हैं। ये पोस्टर प्रदर्शन है। नेक्स्ट, ये मध्य प्रदेश की रूप है, लक्ष्मी की योजना है। तो मध्य प्रदेश की वो एक योजना थी कि जहाँ पे हर एक बेटी को पायल किया जाता था। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की एक स्कीम थी कि जैसे ही बेटी का जन्म होता है तो उसको पायल के रूप में पायल देके उसका स्वागत बनता था। तो ऐसा शुरू होने के बाद में करीब करीब 73,000 बेटियां बनी लाडली लक्ष्मी। तो लाडली लक्ष्मी ऐसी योजना मध्य प्रदेश में है। जो भी मध्य प्रदेश के महानुभाव यहाँ पे उपस्थित हैं वो जरूर इसको अपने अपने इलाके में इसका इस्तेमाल करें। नेक्स्ट, ये तंटा मुक्त जो ग्राम बनता है उसमें भी कुछ अमाउंट बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए यूज होना चाहिए, ऐसा किया है। वो भी आप जरूर अपने गांव में देखें। नेक्स्ट, फिर जैसे नेहरू युवा केंद्र है वैसे युवक बिरादरी भी एक संस्था है, उनके माध्यम से भी हमने काफ़ी कुछ, इसका भी लीड मैं लेती हूँ और पूरे देश में बहुत अच्छा अवेयरनेस इसमें क्रिएट होता है। नेक्स्ट, फिर बहू और सासू जी, उनका एक बहुत अनोखा रिलेशन है और ये रिलेशन बहुत पवित्र रिलेशन है एक्चुअली देखा जाए तो। इसमें मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा बनी हुई देखते हैं हम। तो इस मिसअंडरस्टैंडिंग को डिलीट करके अच्छा रिलेशनशिप को प्रमोट करने के लिए हम आदर्श बहू सासू जी सम्मान अवार्ड दे सकते हैं। आप भी अपने अपने इलाके में ये यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, कई किताबें मैंने लिखी है, बेटी नहीं तो बहू कहाँ से लाओगे, ये हिंदी में है। दूसरी श्री जन्माचे स्वागत करा मार्गदर्शिका मराठी में है और प्रिय गोरसेस ये मराठी में है। ये तीनों ही किताबें केवल इसी विषय पर है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के। नेक्स्ट, इसके बाद में ये है प्रतिज्ञा। ये प्रतिज्ञा हम लेने वाले हैं। जो अभी का सेशन बहुत ही अच्छा लगा और फिर यहाँ पर बहुत ही शिक्षाप्रद बातें बताई और मैं चाहूँगा कि उनको हम सभी अमल करें, अपने जीवन में लागू करें और फिर आगे कदम से कदम मिला करके चले। धन्यवाद। सबने आंखें अपनी हल्की सी बंद की है और बंद आंखों के सामने भारत माता का चित्र लाया हुआ है और मेरे पीछे थोड़ा आवाज को बुलंद कीजिए और मेरे पीछे ये प्रतिज्ञा हमें लेना है। भारत मेरा देश है, सारे भारतीय मेरे बांधव हैं। मेरे इस देश में स्त्री पुरुष समानता रहने के लिए हम सदैव प्रयत्नशील रहेंगे। स्त्री यह महान शक्ति है, वह शक्तिशाली माता है। बेटा अगर कुल दीपक है तो बेटी कुल की दीपिका है। उनका आदर सम्मान करना यह हमारा कर्तव्य है। हम दहेज नहीं लेंगे, हम दहेज नहीं देंगे, हम कन्या भ्रूण हत्या नहीं करेंगे और नहीं करने देंगे। हम स्त्री जन्म का स्वागत करेंगे, हर एक बेटी को पढ़ाएंगे। ऐसी प्रतिज्ञा हम आज ले रहे हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इस अभियान में हम शामिल हो रहे हैं। हाथ नीचे लेना है, आंखें खोलनी है। भारत माता की
ये भारत सरकार का जो ऐलान हुआ है अभी कुछ महीनों पहले, तो उसको लेते हुए कुछ इम्पोर्टेंट पैम्पलेट बनाई हुई है। इसका अनावरण हम अभी ऑफिसर्स लोग बैठे हुए उनके हाथों, मैडम जी बैठे उनके हाथों करने वाले हैं।